میں چاہوں گا کہ ہم 2 بار اس عنوان کو پڑھ لیں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں اور پھر ہمارے دل میں رہے. جی پھر سے پڑھیں. اردو زبان میں خود فریبی، سادہ زبان میں خود کو دھوکہ دینا یا کسی دھوکے میں رہنا، یہ آج کا ہمارا مرکزی عنوان ہوگا. اور آج اسی خیال کو لے کر ہم بائبل مقدس کے اس عظیم حصے میں اتریں گے اور چند ایک باتیں خدا کے کلام کے طالب علم ہونے کے ناطے سیکھنے اور پھر لینے کی کوشش کریں گے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال کرتے ہوئے میں آج کے اس مضمون کی طرف بڑھنا چاہوں گا. ان دنوں میں اور آپ کس خود فریبی کا شکار ہیں؟ ان دنوں میں اور آپ کس خود فریبی کا شکار ہیں؟ وہ کیا ہے جس کو لے کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ہم اپنے آپ کو دلاسا دے رہے ہیں، یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے. ان دنوں میں اور آپ کس خود فریبی کا شکار ہیں؟ ہم کہاں اپنے آپ ہی سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اور وہ کیا ہے جسے لے کر میں اور آپ جانتے بھی ہیں کہ ایسا ہے نہیں، لیکن دل کو تسلی دے دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہونے والا ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے خاموشی میں ذرا چیک کریں اور اپنے آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں کہ میں اور آپ ان دنوں کہاں کہاں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور خود فریبی کا شکار ہیں. اور میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہوں گا کہ اس خود فریبی سے خدا کے لیے باہر نکل آئیں. خدا کے لیے اس خود فریبی سے باہر نکل آئیں. اپنے آپ کو دھوکہ دینا اور اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دینا آج کے بعد سے بالکل بند کر دیں. بالکل بند، ٹوٹلی بند کر دیں. کیونکہ یہ رویہ اور یہ خیال بائبل مقدس کے بالکل اگینسٹ ہے، بالکل خلاف ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ہم خود فریبی سے اپنے آپ کو باہر لائیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. اس امیر آدمی کی طرح جس کا ذکر آج کے حوالے میں موجود ہے، یہ ایک ایسا شخص ہے جو میں سے بھرا ہوا ہے. اوپر سے لے کر نیچے تک یہ شخص میں سے بھرا ہوا ہے. اور اگر آپ اس پورے بیان کو پڑھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اس کے اندر صرف میں اور پھر میں اور پھر میں جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی. اس کے خیال پر ذرا غور کیجیے، اس کے لفظوں پر جو یہاں موجود ہیں غور کیجیے گا. میں یہ کروں گا، پھر میں یہ کروں گا، اور پھر میں یہ کروں گا. وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے میں یہ کروں گا، پھر میں یہ کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں یہ کروں گا. آواز آتی ہے، آئے نادان، آئے بے وقوف، تو جو خود فریبی کا شکار ہے، تو جو میں سے بھرا ہوا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ آج ہی رات تیری جان لے لی جائے گی. تو پھر تیرے یہ سارے کے سارے منصوبے اور تیرے یہ کہنا کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، یہ سب کچھ کہاں جائے گا؟ ہم اپنے آپ کو
धोखा ना दें इस अमीर आदमी की तरह। अगर इसका रवैया दुरुस्त होता तो मैं दलेरी के साथ कहूंगा बाइबल मुकद्दस में इसका नाम होता। बहुत से लोगों का बाइबल मुकद्दस में तज़किरा है, उनका नाम नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि उनका किरदार कोई इतना अच्छा नहीं रहा, और इस शख्स का किरदार कोई इतना अच्छा नहीं है। अमीर जरूर है लेकिन रवैया ठीक नहीं है, जखीरा अंदोज शख्स है ये। और क्या हमारे देश में जखीरा अंदोजी नहीं होती? क्या इस किस्म का रवैया रखे हुए लोग हमें अपने देश में, हमें अपने हलकों में और हमें अपने खानदान में दिखाई नहीं देते, जिन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं? मैं ये करूंगा, यहां लिखा है फिर मैं ये करूंगा, लिखा है फिर मैं ये करूंगा, और फिर मैं अपनी जान से कहूंगा खा पी और मौज कर, खा पी और मौज कर। आवाज गूंजती है आए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। जो कुछ तूने इकट्ठा किया है तेरे बाद किसका होगा? अब इसी किस्म का एक बयान हमें याकूब के आम खत में भी दिखाई देता है। याद रहे कि ये खत खुदावंद यीशु मसीह के अपने सगे भाई ने लिखा है, और खुदावंद यीशु मसीह के इस भाई ने अपने खत के चौथे बाब की 13वीं तथा 17वीं आयत में इसी किस्म का ख्याल पेश किया। कहा, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां एक बार ठहरेंगे, सुदागरी करके नफा उठाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। तुम खुद फरेबी का शिकार हो। हम जाएंगे, हम बिजनेस करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तुम कल के बारे में जानते नहीं कि क्या होगा, लेकिन कितने नादान हो, सालों का प्लान करते हो। लफ्जों पर गौर करेंगे, कल का पता नहीं, और तुम ये प्लान करते हो कि हम अगले साल वहां जाएंगे, अगले साल ये करेंगे, अगले साल में ये करेंगे। क्या लिखा याकूब ने अपने खत में अपने सामईन के लिए लिखा? कहा, ये कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये और ये काम करेंगे। जिंदा रहेंगे तो करेंगे। आए नादान, इसी रात तेरी जान ले ली जाएगी। अरे कैसे करेगा तू? जिंदा रहेगा तो कुछ करेगा ना, लेकिन तेरी जान इसी रात ले ली जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अपने आप को धोखा ना दिया करें, अपने आप को झूठी तसल्लियां ना दें। इस खुद फरेबी से मेहरबानी से बाहर निकल आए, क्योंकि इस किस्म का रवैया जो है वो बाइबल के मुनाफी है, और बाइबल का खुदा इस किस्म के रवैये को कतन पसंद नहीं करता। अच्छा, जिंदगी में कई बार हम बहुत सी गलत फहमियां जो हैं वो जानबूझकर पाले हुए होते हैं। जिंदगी में कई बार हम बहुत सी गलत फहमियां जानबूझकर पाले हुए होते हैं। जानबूझकर हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। चंद एक रेफरेंस में अब कोट करने लगा हूं, मेहरबानी से नोट करते चले जाएं। पहला रेफरेंस, कई बार हम अपने आप को यह समझ रहे होते हैं कि मेरे जैसा तो है कोई नहीं। की गल्लां करदे हो, भली सो भली दुनिया है, तू की है, तू टके वर्गा भी नहीं है, तू की कख भी नहीं, गली का तक भी नहीं। अरे भली सो भली दुनिया है भाई, यहां तो ईंट उठाएं तो नीचे से पीएचडी निकल आते हैं। आप क्या बात करते हैं, आप क्या हैं? लेकिन कई बार हम ये शो कर रहे होते हैं कि मैं बड़ी चीज हूं भाई, मैं बड़ी शय हूं। अरे भाई क्या
याकूब के खत में खुदावंद यीशु मसीह के अपने सगे भाई ने कहा, तुम्हारी जिंदगी का हाल बुखारात का सा है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। अरे तेरी जिंदगी तो पानी के बुलबुले की तरह है। क्या शय है तू? क्या है तू? तेरी औकात क्या है? तू जो अपने आप को यह समझता है कि मेरे पास बड़ा इल्म है, मेरे पास बड़ा तजर्बा है, मेरे पास बड़ा हुनर है, मैं सबसे बढ़कर हूं। अरे तू है क्या? क्या है तू? तेरी औकात है पानी के एक बुलबुले के जैसे। तेरी औकात है उस घास की तरह जो सुबह खिलती है और शाम को सूख जाती है और लोग उसे अपने पांव के नीचे रोंद देते हैं। कई बार हम अपनी इस गलती को दुरुस्त नहीं कर रहे, हम ये तासुर दे रहे होते हैं हम बड़ी शय हैं भाई, हम ये तासुर दे रहे होते हैं कि हम फलां 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 से बहुत अच्छे हैं। और कई बार लोग ये कह भी रहे होते हैं, पादरी साहब आप मेरा उसके साथ मुकाबला तो ना करें। अच्छा कितना करा? आप ही 10 शब्द कितना करा? अब आप उसके साथ तो मेरा मुकाबला ना करें। अच्छा भाई आप कौन है? Who are you? कौन है आप? खुदा की नजर में जिसके साथ आप कह रहे हैं मुकाबला ना करें, वो खुदा की नजर में तो इक्वल है। खुदा ने उसको भी अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है और आपको भी बनाया है। आपके पास ज्यादा क्या है? पादरी साहब मेरा फलां के साथ मुकाबला तो ना करें। देखें उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है। भाई साहब देखें मैं साहिबे हैसियत हूं। ये बड़ी गलत किस्म की सोच है। हमारी जिंदगी का हाल बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, और आप तमाम के तमाम पढ़े लिखे लोग यहां बैठे, आप अपने अपने शोबे के माहिर हैं। एक बात याद रखिएगा, इल्म हमेशा एहसास और प्यास पैदा करता है। ये याद रखिएगा, इल्म हमेशा एहसास और प्यार पैदा करता है, प्यास पैदा करता है। और एक बहुत बड़े मुफक्कर ने ये कहा कि अपनी ला इल्मी का एहसास ही असल में इल्म है। अपनी ला इल्मी के एहसास का होना ही असल में इल्म है। मतलब क्या है सादा जुबान में, कि बंदा ये कहे कि मुझे बिल्कुल किसी बात का कोई पता नहीं, ऐसा बंदा ही आलिम और आकिल कहलाएगा। अच्छा कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोग ये तासुर दे रहे होते हैं कि वो सीखे सिखाए, उन्हें सब कुछ आता। अरे भाई अगर सब कुछ सब बंदे ही कर सकते हैं तो फिर बाइबल मुकद्दस के उस बयान को कहां रखेंगे जहां ये लिखा है कि खुदा ने किसी को उस्ताद, किसी को चरवाहा, किसी को मुबश्शिर, किसी को उस्ताद बनाकर दे दिया। सारे काम सारे लोग तो नहीं कर सकते। जो काम आप करते हैं वो मैं नहीं कर सकता, जो काम मैं कर रहा हूं वो आप नहीं कर सकते। ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। गिफ्ट तरह तरह के हैं, नेमतें तरह तरह की हैं, सलाहियतें तरह तरह की हैं, क्वालिटीज तरह तरह की हैं। रूह एक है और वो जिसको जो चाहता है देता है। ये आपकी ख्वाहिश पर आपको नहीं मिला, ये खुदा ने आपको अता किया है। और मैंने पिछली बार एक बहुत बड़ा जुमला आपको दिया था, कई बार होता क्या है हमारी लर्निंग बिल्कुल कम होती है लेकिन उसकी अता बहुत ज्यादा होती है। मैंने पीएचडी शख्स भी देखे हैं जिनकी जुबान में तासीर नहीं और वो यहां खड़े होकर कख कहने के लायक नहीं। आप बिलीव करेंगे? और मैंने मैट्रिक पास पादरी देखे हैं जो यहां जब खड़े हो जाते हैं लोग कहते हैं भाई साहब फटे छड़े जाते हैं। आज तो मजा आ गया भाई साहब,
बड़ा ही मजा आया। ये क्वालिटी की बात है कि किस शख्स को खुदा ने किस किस्म की तासीर दी है, उसकी जुबान में कितना असर है, किस किस्म की क्वालिटी खुदा ने उसको बख्शी है। तो याद रखें कि हम जो पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं, इल्म हमेशा एहसास और प्यास पैदा करता है। हमें सीखना है, हमें सीखना है और हमें सीखने के अमल से गुजरते रहना है। और अगर कोई हमें सिखाता है और सिखाने के दौरान कोई हमारी करेक्शन करता है तो हमें उसे सल्यूट करना और दिल पर हाथ रखकर उसके लिए शुक्रगुजारी भी करना। वैसे इंज हुंदा नहीं, मैं क्या ना सीखे सिखाएं। हम समझते हैं कि जी हमें कोई ना सिखाए, हमने सब सीखा। अरे भाई पता नहीं क्या सीखा। सारी चीजें गूगल से थोड़ी आप सीखते हैं। मेरे पास गूगल से भी बड़ी चीज है। मैं तो समझता हूं कि हम जिंदगी यहां से सीखते हैं, क्योंकि ये जिंदगी का ज़ाब्ता है हयात। ये वो ज़ाब्ता है, ये हयात का वो ज़ाब्ता है जो इस पर चलेगा। गूगल के जरिए ठोकर खाएगा, लेकिन इसके जरिए ठोकर नहीं खाएगा। गूगल पर जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है वो इंसानों ने दी है। भाई नोट कर लें, इस बात को नोट कर लें। और इंसान गलती कर सकता है। और इस अजीम किताब में लिखा है खुदा और इंसान में फर्क यह है, खुदा कभी गलती नहीं करता। दिस इज वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदा का कलाम है भाई। इसलिए इंसानी इंफॉर्मेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती हो सकती है, लेकिन इस अजीम किताब में लिखा है इसका एक एक नुक्ता और एक एक शोशा जो है वो अटल है, वो अटल है। और लिखा है कि एक एक नुक्ता और एक एक शोशा जो है वो पूरा होकर रहेगा, पूरा होकर रहेगा। चले आगे बढ़ते। कई बार फिर से हम गलतफहमी का शिकार होते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो पोजीशन है, गौर से सुने भाई, बड़ा अहम नुक्ता है ये। हमारे पास जो पोजीशन है, हमारे पास जो रुतबा है, हमारे पास जो इख्तियार है, हमारे पास जो अथॉरिटी है, हमारे पास जो पोजीशन है, ये बड़ी है। लोग कई बार अपनी पोजीशन, अपने इख्तियार, अपनी सीट, अपने मुकाम, अपने हुनर और अपनी एजुकेशन पर अतराते हैं। भाई सब नहीं पता मैं क्या कहता है, पता नहीं है क्या कहता है। तू इन जो डिग्रियां गले च पा के रख ताकि हर बंदे को पता लगे तू कीता है। और मैं पता नहीं अपने अपने मिजाज की बात है भाई, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है कि जब उन्हें स्टेज पर लाया जाए तो कम से कम 10 मिनट में उनके बारे में बताया जाए। कोई 10 मिनट उनकी डिग्रियों पर लगाए जाएं कि उसने ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया। मैं अपने उस्ताद पादरी असलम ज़ियाई साहब के मिजाज में बहुत हद तक ढला। वो मेरे मेंटोर हैं, मेरे रूहानी बाप हैं। मैं उनके साथ कन्वेंशन पर बहुत गया, स्टूडेंट लाइफ में, सेमिनरी ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ बहुत कन्वेंशन पर मैं गया। लोग उनके कसीदे पढ़ते थे। इंट्रो के तौर पर जब उन्हें स्टेज पर लाते थे, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। असलम ज़ियाई साहब स्टेज पर आकर सिर्फ ये कहा करते थे, खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं तेरा खादिम हूं। और वो हमेशा लोगों को ये कहा करते थे, क्या इससे बड़ा और कोई तारुफ नहीं कि आप मुझे स्टेज पर लाते हुए ये कहते कि खुदा के खादिम आएंगे और कलाम की खिदमत को सरंजाम देंगे। दैट्स ऑल, सिंपल भाई। डिग्री। कराची के एक साहब हैं जिन्होंने किताबें भी लिखी हैं और हर किताब के हर पन्ने पर, मैं आपको दिखा सकता हूं, हर किताब के हर पन्ने पर यह लिखा है डॉक्टर, प्रोफेसर, रेवरेंड, बिशप। ये चारों लफ्ज मैं दिखा सकता हूं आपको भी। रेवरेंड, प्रोफेसर,
और बिशप। क्या मतलब है भाई इसका? पता नहीं किस गलत फहमी का आप शिकार हैं। इतने पढ़ लिख के भी आप हम्बल नहीं हुए। आप अपनी डिग्रियां झाड़ रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिए ना, समझ बड़े गौर से। बड़े चर्चिस में वैसे आप चले जाएं तो वहां पर जो उस वक्त मुकामी पासवान होता है, उसके ऑफिस में एक बोर्ड अवेजा होता है जिस पर उससे पहले के जितने प्रीस्ट होते हैं उनका नाम लिखा हुआ होता है। आप थानों में चले जाएं, आपसे पहले कितने थानेदार आए हैं। मैं बात पोजीशन की कर रहा हूं, अपने नुक्ते पर, इख्तियार पर, ठीक है, उसी इख्तियार को मैं अभी बयान करने लगा। आप थाने में चले जाएं, आप किसी पासवान के ऑफिस में चले जाएं, आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, वहां पर आपसे पहले जितने लोग आए उनके नाम लिखे हुए होते हैं। अच्छा भाई, तू किस बात पे इतरा रहा है? सीट पर बैठकर तू कह रहा है कि ये पोजीशन, ये इख्तियार, ये रुतबा, ये सब कुछ मेरा है। अरे भाई, तुझसे पहले किसी और का था। इख्तियार, रुतबा, नोट कर लें इस बात को, ये हमेशा दिया जाता है। इख्तियार आपको दिया जाता है और ये दिया हुआ इख्तियार आपसे कभी भी वापस भी ले लिया जाता है। तो इतराना का ही मेरी की बड़ी पोजीशन है। अरे भाई, आज है, खुदा का शुक्रिया अदा कर, हम्बल हो। पता नहीं कल होगी कि नहीं होगी, फिर कमागा भली सो भली दुनिया है, तेरे नालों बड़े बड़े पे तेन चुक के बाहर मारना उन्होंने और तेरे वर्गा को ना सीट से बिठा देना। हम गलत फहमियों का शिकार है। हम चर्चिस में आकर भी गलत फहमियों का शिकार रहते हैं। आज का तीसरा रेफरेंस किसकी तरह? लूका की अंजील के 18वें बाब के उस शख्स की तरह जो हैकल में दुआ करने गया और खुदा के सामने इतराते हुए उसने कहा, मैं इस शख्स की तरह नहीं हूं। खुदा मन तुझे तो पता ही है, मैं तो बड़ा ही अच्छा, अपनी सारी आमदनी पर दयकी भी देता हूं, चर्च में बड़ा रेगुलर हूं, पादरी विलियम के साथ मेरे ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं। देखो, मैं तो खाने पीने का मामला हो सबसे पहले पैसे निकाल कर देता हूं। कुछ भी हो जाए मैं तो फ्रंट लाइन पर खड़ा हो जाता हूं। और खुदावंद तुझे तो पता है कि मैं हफ्ते में 2 रोजे भी रखता हूं और मैं अपनी सारी आमदनी पर दयकी भी देता हूं। लूका की अंजील के 18वें बाब में ये वो शख्स है जिसकी ये गलत फहमी उसे वहां ले गई जहां रोना और दांतों का पीसना है। लानत लेकर गया ये खुदा के घर से। मुकाबला करने की कोशिश की ना, मैं इसकी तरह जालिम नहीं हूं, मैं इसकी तरह बेइंसाफ नहीं हूं। बाइबल में यही लिखा हुआ, मैं इसकी तरह नहीं हूं। देखिए तो छाती पीट पीट कर कह रहा है, आई खुदा तू मुझ गुनहगार पर रह। खुदावंद मैं तो ऐसा नहीं, मतलब वो ये कह रहा है मैं तो गुनहगार भी नहीं। लानत लेकर गया। तो इस बात पर खुदा के लिए कभी ना इतराएं कि आप खुदा के घर में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मुमकिन है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे नीयत जो है वो खुदा के स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो और आपको इस आवाज को सुनना पड़े, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन। उस वक्त लोग आएंगे और कहेंगे, लिखा है गॉस्पेल में, उस वक्त लोग आएंगे और कहेंगे, क्या हमने तेरे नाम से बदबूहें नहीं निकाली? क्या हमने तेरे नाम से बीमारों को शिफा नहीं दी? क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए? उस वक्त मैं उनसे कह दूंगा, मेरे सामने से चले जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। तुमने ये सब कुछ तो किया शो के लिए, नंबर्स के लिए, दिखावे के लिए। ये उम्मत जुबान से तो मेरी तारीफ करती है, प्रस्तिश करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। तो चर्चेस के लोगों को भी बड़ा संजीदा होने की जरूरत है। हमारे बड़े बड़े चर्च लीडर्स जो हैं, पता नहीं किस गलत फहमी का शिकार हैं। मैं बिशप बन गया फिर सदा मैं ही रहना, मैं मॉडरेटर बन गया फिर सदा मैं ही रहना। अरे भाई, सदा कौन रहा है यहाँ? आप एक टर्म के लिए रखे गए हैं।
अच्छी यादें छोड़कर जाएं, अच्छे काम करके जाएं, ताकि आपके जाने के बाद लोग आपको अच्छे नामों से याद करें कि फलां ने फलां फलां किया। चले आगे बढ़े। तो फिर हमें करना क्या है? खुद फरेबी से बचना है, गलत फहमियों से बचना है, अपने आप को किसी गलत फहमी का शिकार नहीं बनाना, बल्कि हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हमें अपने आप को हर रोज सबसे पहले रूहानी तौर पर और उसके बाद जिस्मानी तौर पर अपग्रेड करते रहना, अपग्रेड करते रहना। तो मैं माजरत के साथ हाथ जोड़कर आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप अपने अपने शोबों के माहिर हैं, आप पढ़े लिखे लोग, जब भी तो आप दुबई में, लेकिन क्या आपने दुनियावी कामों के साथ साथ अपने आप को रूहानी तौर पर भी यहां रहते हुए अपग्रेड किया है? पूछिएगा जब आप वापस जाएं तो अपनी गाड़ी में अपनी बीवी के साथ सिर्फ ये बात कीजिएगा, कोई और ना कीजिएगा। उससे पूछिएगा, पढ़े लो कि मैं अपग्रेड हो जाऊँ? तो समझ नहीं है कि मैं कुछ अपग्रेड हो जाऊँ, मैंने वाकई रूहानी तौर पर कोई तरक्की भी की है या कि नहीं? ये फॉर्मेलिटी तो नहीं, बस आए संडे को इबादत की और फिर एक हफ्ते के लिए गाड़ी। अपग्रेड, जिस तरह हम अपने मोबाइल फोन्स को अपग्रेड करते हैं, जिस तरह हम अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करते हैं, जिस तरह हम अपने मुख्तलिफ स्किल्स जो हैं उनके हवाले से अपने आप को अपग्रेड करते हैं, हमें अपग्रेड करना है अपने आप को रूहानी तौर पर। रूहानी तौर पर क्या लिखा है? बड़ी खूबसूरत बात दूसरे ग्रंथियों 13वें बाब की 5वीं आयत में लिखी है, अपने आप को जांचो कि तुम ईमान पर हो भी कि नहीं। अपने आप को जांचो। और मैंने कितनी बार कहा, जब हम उर्दू जुबान के लफ्ज जांच का इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद है लैब में अपने आप को लेकर जाना। और लैब असल में ये है जहां हर संडे के संडे हम आते हैं और डॉक्टरों के डॉक्टर यस्सु के सामने पेश होकर अपना एग्जामिन करवाते हैं और यहाँ से फिर लौटते हुए देखते हैं कि इस चेकअप के बाद मैं और आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली कहाँ खड़े हुए। चले खत्म करें। खुद फरेबी से बाहर आए, मैं से बाहर आए और मेहरबानी से हम्बल हो जाए। फिर से आज वही कहूंगा जो व्हाट्सएप मैसेजेस में अक्सर मैं ये जुमला दोहराता हूँ, उठते बैठते हाथ खड़े करके ये कहा करें, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिफर। और आज से ये कहना शुरू कर दें और मेरी दरख्वास्त है आप सबसे, यहाँ से जाते हुए ये कहते हुए जाएं, खुदावंद मैं अपने आप को आज के दिन तक हीरो समझता रहा हूँ, हीरोइन समझती रही हूँ, अरे मैं तो जीरो हूँ। और आज जब अपने गाड़ियों की तरफ जाएं, जब वापसी का सफर लें तो ये कहते हुए जाएं, मैं तो अपने आप को हीरो समझता रहा हूँ और आज पता चला कि मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, जीरो जीरो। अगर मेरे और आपके पास इल्म है, काबिलियत है, खुदा ने हमें कुछ स्किल्स दिए हुए हैं, खुदा ने हमें एजुकेशन दी हुई है, खुदा ने आपको अच्छा पैकेज दिया हुआ है, खुदा ने आपको अच्छी गाड़ी दी हुई है, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे दिए हुए हैं, अच्छे वालिदैन, अच्छे दोस्त दिए हुए हैं, प्यार करने वाले, आपको पुश करने वाले दिए हुए हैं, तो ये खुदा की बख्शिश है भाई, ये आपकी कोई खूबी नहीं है, ये खुदा की बख्शिश है। चलें आखिरी बात कह के खत्म करें। बड़ी जबरदस्त बात देखी है, उस वक्त बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे हमने तेरे नाम से ये और ये नहीं किया। मैं उनसे कहूंगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी, पता नहीं किन के लिए तुमने किया। हाँ
حل یہ ہے، تم پہلے خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو۔ ٹاسک کیا ہے؟ ایجنڈا کیا ہے؟ خدا کا پلان کیا ہے؟ کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے پہلے اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کریں، تو پھر لکھا ہے دنیا کی یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی، پھر آپ کو تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر میں کہوں گا لرننگ شاید کم ہوگی، محنت بھی بہت کم ہوگی، لیکن عطا بہت زیادہ ہوگی۔ اور پھر سے آپ کو یاد دلا دوں، آپ جن جن شعبوں میں بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بھائی میں نے یہ دیکھا ہے نا، اپنی اس خدمت میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم پڑھے لکھے پاسبان جو ہیں وہ سینٹرل چرچز کے پاسبان بن گئے۔ ان کے پاس اتنی قابلیت بھی نہیں تھی، ان کے پاس اتنی اہلیت بھی نہیں تھی، یہ خدا کی عطا تھی۔ نہیں، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کسی بشپ کی بھی عطا تھی، ابھی کبھار یوں بھی ہوتے، یہ خدا کی عطا تھی کہ خدا نے ان کو سینٹرل پوزیشن بخش دی۔ ممکن ہے کہ آپ کے ادارے میں بھائی ناصر بڑی اچھی جاب کرتے رہے ہیں، بھائی شیلا یہاں بڑی اچھی جاب، ممکن ہے کہ آپ سے بہت بڑے اور پڑھے لکھے لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہوں، لیکن جو پوزیشن بھائی کو خدا نے دی وہ شاید کسی کو بھی نہ ملی ہو۔ اسی دبئی میں، اسی گلف میں مجھے 19 سال ہو گئے، اور میں نے یہ دیکھا ہے انتہائی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ماپ مار رہے ہیں، اور انتہائی ہارون کم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کمال کا پیکج اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ میرے خدا کی عطا ہے بھائی، یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ آئیے میرے خداوند تیرے کلام کی ان خوبصورت باتوں کے لیے شکر گزار